کامیابی حاصل. ایون انہوں نے ایسا راکٹ بنا دیا ہے جس کے اندر مطلب لوگ بیٹھ کے نا ٹورسٹ کے طور پہ اوپر بھی جا سکتے ہیں. مطلب ایسے ایسے انہوں نے بنا دیا. اور ہمارے پاس لوگ بیٹھ کے نا ٹورسٹ کے طور پہ اوپر بھی جا سکتے ہیں. مطلب یہ جو نعرے لگاتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی والی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ خواتین ٹھیک نہیں ہیں؟ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اب اگر مٹھائی پڑی ہے، مٹھائی کے اوپر اگر آپ کپڑا نہیں ڈالیں گے تو ظاہر ہے وہ جو مکھیاں ہیں شاید کہ وہ دوسری وہ تو پڑیں گی. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. عورت مطلب آپ کو مٹھائی کی طرح لگتی ہے. جی. مطلب گیٹ بجے گا، بیل بجے گی تو تو جا کے دیکھے گا. تو چودھری ہے، تو چودھری ہے. ذرا سی آہٹ ہوگی گلی میں تو تو جا کے دیکھے گا. تو گلی کا چودھری ہے، کوئی گلی سے نکلے نہیں، تیرے باپ کی گلی ہے. پہلے تو پردہ ہونا چاہیے نا. یہ فحاشی تو انہوں خود عورتوں نے پھیلائی ہوئی ہے. کیسے نا کوئی بندہ وہ یہ کام کرے. مطلب جو رات کو اکیلی نکل جاتی ہیں، ساتھ کوئی بندہ بھی نہیں ہوتا تو وہ تو غلط بات ہے نا. یہ اسلام کا، ہمارا اسلام یہ کہتا تھوڑی ہے. عورت کا کیا ہے معنی؟ پردہ کیا عورت کا زیور ہے. عورت کو پردہ کرنا چاہیے، گھر میں رہنا چاہیے. اگر نکلنا بھی ہے تو اپنے خاوند کے ساتھ نکلے. اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر بھی پردے میں نکلے. تو پھر کیا اگر عورت نے دفاع کرنا ہے اپنا، اس کے لیے پھر اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے اس کو یہی ہے کہ پردہ کرنا پڑے گا اور یہاں گھر میں رہنا پڑے گا. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جینس کی پینٹیں بنا دیتے ہیں. عام لوگ تو اس چیز کو نہیں نا کرتے فالو. مطلب جو لوگ اس طرح سے، جو خواتین باہر نکل رہی ہیں، ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. میری نظر میں وہ غلط ہے. ان کے ساتھ ایسا ہونا. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر میں آپ اپنے ہسبینڈ یا بھائی یا مطلب مرد کا حکم مانیں، آپ ان کا حکم مانیں، ان کے پہرے داری کریں کہ نہ کہ اس طرح کے کوئی واقعات استعمال کریں کہ جس سے مطلب دوسرے لوگوں کو بھی معاشرے میں مطلب کہ شرمندگی کا اٹھانا پڑے. تاکہ کشمیر کیا کہتے ہیں پاکستان میں میسیج جاتا ہے. اسلامک کنٹری ہے ہماری، اور ہماری ہر لڑکی جو ہے وہ یہ ٹک ٹاک، یوٹیوب اور فیس بک کا شکار ہے، جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں بڑھ جاتی ہیں. تو پھر خواتین کو کیا کرنا پڑے گا کہ یہ ریپ نہ ہو؟ خواتین کو بیسک سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ اپنا لباس درست کر لیں. ریاست کچھ کر رہی ہے خواتین کے تحفظ کے لیے؟ ہے اب تو کافی زیادہ، لیکن اب جو نا نیگیٹیوٹی زیادہ آ رہی ہے کہ مطلب خواتین کو آزادی کے نام پر جو بہت زیادہ ایک اسپیس دیا جا رہا ہے نا، اس کا کافی مس یوز بھی ہے. تو وہ شاید اس وجہ سے زیادہ پرابلمس ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو. تو آپ نے دیکھا ہے. اب شاید آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ بھئی میں نے ان کو کاؤنٹر کیوں نہیں کیا، ان تمام تر لوگوں کو، جب یہ جہالت پھیلا رہے تھے، اور ان کے آگے سے سوالات کے جواب کیوں نہیں دیے یا انہیں تنگ کیوں نہیں کیا. تو وہ اس لیے نہیں کیا کہ میں ان کو ایجوکیٹ کرنے نہیں گیا. میرا پرپز یہ تھا کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ سخت سزاؤں سے مسئلہ حل ہو جائے گا، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بیمار اصل میں ذہن ہے، انسان نہیں ہے. اور کوئی عورت کو مٹھائی سمجھ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے بچیوں کو جینس پہنا دیتے ہیں اسی لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ مرد کے ہاتھ سے عورت نکل چکی ہے اس لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، اور کوئی عورت کہہ رہی ہے کہ اس کو بہت آزادی مل چکی ہے عورتوں کو، اس وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اصل میں یہ بیماری جو ہے نا، یہ ذہن کی ہے. اور آپ جتنی مرضی پھانسیاں لگائیں، لیکن یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ آپ کے سامنے ہے. اور اس کا علاج کیسے ہوگا؟ ایجوکیشن سے. تھینک یو. اچھا جی، اب آتے ہیں کچھ کامیڈی. اور جو میں نے باتیں بہت ساری کرنی تھی وہ میرے پاس پڑی میں ویڈیو. ایک ویڈیو چیک کریں. ہمارے جو حوروں سے پیار کرنے والے، حوروں کا چورن بیچنے والے، سب سے بڑے، سب سے مقبول، سب سے امن پسند پیار کرنے والے صاحب طارق جمیل، مولانا طارق جمیل صاحب کی تھوڑی سی کچھ باتیں سنتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں. میں بھی ذرا سنوں یہ کیا کہہ رہے ہیں. عظیم کی امت پر انتہائی لعنتدار، انتہائی سچے، انتہائی کھرے. تو ایک دفعہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں پڑھایا؟
कहने लगे जनाजे से चंद दिन पहले मैंने ख्वाब देखा, अल्लाह के नबी खड़े हैं और साथ कायद आज़म हैं, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये हमारा मुजाहिद है, थपकी देते हैं और कहते हैं ये हमारा मुजाहिद है। तो कहा मैंने इसलिए इनका जनाजा पढ़ाया। और एक दफ़ा मैंने ख्वाब में देखा तो मैंने पूछा आपका क्या हाल है? कहने लगे मैं बड़ी राहत में हूँ, मैं बड़ी राहत में हूँ। तो फिर उन्होंने ना अपनी 2 उंगलियां मेरी तरफ की कि ये चूस लो। तो मैं थोड़ा डरा कि पता नहीं क्या है क्या नहीं। कहने लगे डरो नहीं बेटा, ये चूस लो, अल्लाह तुझसे 3 का काम लेगा। वो 2 उंगलियां इसमें मुंह में डाली तो उसमें से गाढ़ा मीठा शहद निकल के मेरे मुंह में आना शुरू हुआ। उसके साथ ही मेरी आंख खुली तो उसकी मिठास मेरे मुंह में बाकी थी। तो उनको मोहलत ना मिली, पहले टीबी का शिकार थे और अपना मर्ज छुपाते रहे, इसलिए मेरी उंगल चूस। हो सकता है इनको कुछ और भी उन्होंने कहा हो, इनको उंगली जहन में आई हो, या ये पीजी रेटेड हमें बता रहे हैं कि उन्होंने उंगली का कहा, वरना अच्छा मजाक के अलावा ये आलमों का हाल है। ख्वाबों की दुनिया, इसी को तो कहते हैं ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले लोग। अब ये कायदे आजम की राइचियसनेस यानी उनकी अच्छाई का म्यार ये बता रहे हैं कि फलाने मौलवी ने कहा कि उनकी नमाज इसलिए पढ़ाई क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के लिए बड़ा अच्छा काम किया, पाकिस्तान बना दिया। अच्छा चलो, अब वो इस्माइली बैकग्राउंड से थे, शिया में भी इस्माइली, जिनको शिया भी नहीं कहते कि मुसलमान है। अच्छा चलो उसको इग्नोर करो। उर्दू ने बड़ी मुश्किल से आती थी बोलनी, इंग्लिश बोलते थे, पारसी औरत से उन्होंने शादी की, पोर्क भी खाते थे और शराब विस्की के बड़े शौकीन थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम बना दिया। इस वक्त जन्नत में एंजॉय कर रहे हैं वो। और कैसे हमें पता चला? कुछ सैटेलाइट के थ्रू ये इंफॉर्मेशन नहीं आई, ऊपर से आई। किसके थ्रू? हजरत मौलाना तारिक जमील साहब के ख्वाब के थ्रू। अच्छा चलो, ख्वाब में भी आके कोई नॉर्मल बात कर दे दूंगा, मेरी उंगल चूसो। ये किधर कौम को लगाया हुआ है? मौलाना साहब कोई आप थोड़ी सी तो कोई शर्म है यहाँ कर लो। ये क्या लोगों को सिखा रहे हैं आप? क्या हवाई फायर मार रहे हैं आप? तो बहरहाल ये एक मजाहिया खबर थी, मैंने कहा शेयर करूं आपके साथ। एक मिनट ये बुखारी जी से एक बार पूछ लेते ना। बुखारी जी जरा, जो महेंद्र पाल आर्य जी ने पूछा है उसका कोई जवाब है आपके पास? क्या पूछा उन्होंने कहा कि अल्लाह ने 4 दिन में सूरज बनाया, ऐसा कह रहे हैं, लिखा है, कहा वो उन्होंने पढ़ के भी बताया। तो जो दिन है वो दिन गिने कहां से? क्योंकि दिन तो सूर्योदय सूर्यास्त से गिने जाते। जब बना है, जब दुनिया नहीं थी। हाँ, दुनिया बाद में बनी है, तो दिन कहां से गिने? हाँ, तो सूरज का अपना काम है, अपने काम के लिए बनाया है उसने, इसमें क्या परेशानी? हाँ, तो जब बनाया तो 4 दिन में बनाया, वो 4 दिन कहाँ से गिने, ये वो पूछ रहे हैं। 4 दिन कहाँ से गिने? हाँ, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। अगर मक्खी आपके खाने में पड़े या दूध में पड़े तो उसको पूरा डबो दो, क्योंकि इस बदबख्त के 2 पर हैं, एक में बीमारी है, एक में शफा है, और ये बीमारी वाला ही डबोती है, शफा वाला ऊपर रखती है। तो इसको डबो दो ताकि बराबर हो जाए, आपको नुकसान नहीं होगा। कि इमाम आयतुल्लाह खुमैनी आपके पास, आपके घर पे एंटी प्लास्टिक मिसाइल फेंका गया है, आप क्या करेंगे? वो कहते हैं इमाम खुमैनी ने कुछ नहीं कहा, फकत कुरान की एक आयत पढ़ी। एक आयत पढ़ी का कौन सी आयत? का उन्होंने फकत कहा अलम तरा कैफा फाला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। कहते हैं ये आयत पढ़ी, इमाम कमरे में चले गए, जमाने वालों ने देखा कि उस एंटी प्लास्टिक मिसाइल के पंखे में एक चिड़िया दाखिल हुई और समंदर में फटकर गिर गया। अरे अब तक नहीं समझे? अल्लाह ने बताया कि वारिसे काबा की हिफाजत के लिए अबाबील का लश्कर
अगर अमेरिका गया है चांद पर तो गया है, चांद तो बिल्कुल नीचे, जैसे ये पंखा छत से नीचे है, चांद नीचे है। लेकिन जिस दिन अमेरिका पहले आसमान को चीर करके दूसरे पे पहुंचा, दूसरे को चीर करके तीसरे पे पहुंचा, तीसरे को चीर करके चौथे पे, और सातवें आसमानों को चीर करके सातवें पे पहुंचे, सातवें के ऊपर अर्श है, अर्श पे पहुंचे, और वहां से फिर ये कि जन्नत में अमेरिका पहुंचे, तो फिर उस दिन उसमें इस मुल्ला को बता देना, पतलून उसका फटेगा लेकिन आसमान तक पहुंचेगा भी नहीं। चांद तक अगर कोई गया तो हमारे किसी मौलवी ने 1500 साल हमें गुजर गए हमारे मौलवियों को, लेकिन हमने अल्लाह के फजल से इसका इनकार भी नहीं किया है चांद पे जाना। अमेरिका चांद पे तो अब गया, वो मौसमियात के हालात आपको अभी बताते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम आज से 1500 साल पहले हमारे पास ये हालात मौलवियों की थी। मौलवी को फटकार होगी खुदा की कि मौलवी साहब ने भी अपने उस साइंस को छोड़ा। हमारी साइंस और फलसफे की किताबें इन खबीसों ने, अंग्रेजों ने चोरी करके उलमा को मुसलमानों की बेइत्तिफाकी और अदम इत्तिफाक की बुनियाद पर ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की। गोरे ने, गोरे के बाप जानता है साइंस को, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये सब कुछ हमारा था, ये सारा ही हमारा था। खैर कभी अगर मौका मिल गया तो मुसलमान साइंसदानों के बारे में आपको बता दूंगा कि क्या क्या उनके कमालात थे। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था, और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। क्या बोला तूने? ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता हुआ साकिन का स्टैटिक, अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करता। कोरोना वायरस एक इंसानी शक्ल में आया और उससे पूछा, भयानक शक्ल थी, तू कौन है? उसने कहा मैं हूं कोरोना वायरस। भाई किस लिए आया? तो कह लगे कि ख्वाब के अंदर कि मैं कोरोना वायरस हूं। वहां जहां से ये चाइना में शुरू हुआ था कि वहां एक आयशा नामी औरत से ज्यादती हुई, उसके मुंह पर पट्टी बांध रखी थी, 3 दरिंदों ने ज्यादती की, वो बोल तो सकती नहीं थी। उसने दिल में अल्लाह के आगे रो के ऐसा दुखड़ा सुनाया कि या अल्लाह क्या हो रहा है कि कोई मेरा हमदर्द, कोई मुझे बचाने वाला नहीं। तक वो ज्यादती करके फारिग हुए, नकद कोरोना वायरस की सूरत में अल्लाह का अजाब आया, 3 बंदे को वहीं पड़ गए। मुस्लिम, मेरा आपसे सवाल है, आप ये बताएं कि साइंस की बात को मानना जरूरी है या कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है? तो सादा सा जवाब है कि कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है। तो मोहतरम, फिर कुरान और हदीस में ये दलाइल मौजूद हैं कि जमीन साकिन है। 105 दलीलें दी हैं उसमें कि जमीन हरकत नहीं करती। दुनिया लगी हुई है उस किताब पर, आज काम हो रहा है उस पर, इंशाअल्लाह हक वाज़े हो जाएगा। 105 दलीलें दी अकल वालों के लिए कि लोग इन बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते, एक साइंसदान और अंग्रेज की बात को मान रहे हैं जबकि कुरान और हदीस के दलाइल को नहीं मान रहे। मोहब्बत वालों के लिए ये दलील के जमीन हरकत नहीं करती, क्यों नहीं करती? इसलिए कि मुस्तफा उस पे आराम कर रहे हैं। आन के 2 टुकड़े किए और ऐसे नहीं कि दोनों यूं रहे और इतनी सी लकीर बन गई, नहीं। हुजूर जानते थे मक्के वालों में बहुत से चिटिंग बाज लोग हैं, ये जल्दी से मानेंगे नहीं। टुकड़े करके इतनी दूर किया कि चांद का आधा टुकड़ा जो है वो पहाड़ के इस तरफ नजर आया और चांद का दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ नजर आया, यानी दूर दूर हो गए। मक्के वालों की आंखें फटी के फटी रह गई। धरती आज अगर अपनी जगह कायम है, कल को जैसे वो चाहेगा वैसे रहेगी, जैसे धरती घूमेगी नहीं चाहेगा। लेकिन फिलहाल सूरज घूम रहा है। सूरज भी घूम रहा है जी। अच्छा, नहीं आप पहले आपका कुरान पे पूरा विश्वास नहीं है? मतलब नहीं, कुरान सूरज घूम तो मतलब आप कॉन्फिडेंस के साथ कोई एक जवाब दीजिए ना। कुरान
सूरज तो चल ही रहा है, सुबह से शाम तक इधर से पूरब से पश्चिम तक जाता है। चल के सूरज घूम रहा है, तो ये तो सभी देख रहे हैं। सूरज घूम रहा है जी हाँ। और धरती एक जगह है। धरती हाँ अभी एक ही जगह है। अभी एक ही जगह है, फिर कब घूमेगी? अब ये जब अल्लाह की मर्जी होगी तब घूमेगी। घूम सकती है।